हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक और एडवांस्ड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है हेज फंड्स। अगर आप इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट या फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आपके लिए फाइनेंस में आगे कैरियर बनाना है, तो आपको हेज फंड सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि हेज फंड ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके कैरियर में आके काम देने वाला है। इससे आप लाइक कोई प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो अपने लिए। तो यस, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हेज फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड या प्राइवेट इक्विटी से कैसे अलग होता है हेज फंड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नहीं नहीं, उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वीडियो में मैं जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करा है हेज फंड का, तो आज मैं सिर्फ मॉड्यूल 1 डिस्कस करने वाली हूँ। मॉड्यूल 1 में मैं डिस्कस करूँगी हेज फंड के बेसिक्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन कैसे हुआ था, इसका फंड स्ट्रक्चर क्या होता है और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं। उस मॉड्यूल्स में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ उसके लिए एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। सो इन मॉड्यूल 1 आई विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन टू हेज फंड्स। लाइक इन today's video I will discuss module 1, right? Hedge fund basics, hedge fund structure and participants, and types of hedge funds and their objectives. Um, After this video, I will upload the second video tomorrow, in which I will discuss the module 2. In which what I will discuss? I will discuss the intermediate level, that is hedge fund investment and trading strategies. So yes, long and short equity strategy, global macro strategies, and event driven strategy, arbitrage strategies and market neutral strategies, quantitative and algorithm trading in hedge funds, cryptocurrency and alternative asset hedge funds. So yes, I will discuss this. After the second video, in second video, I will cover the module 2, and after completion of second video, I will create a third video in which I will discuss module 3. In module 3, what will be the risk management techniques, hedge fund performance measurement and benchmarking, leveraging, and liquidity management in hedge funds. As you can see on a screen, like in module 4, in fourth video, I will discuss the module 4, in which you will get to know the industry knowledge, like hedge fund fee structures, hedge fund operations and due diligence, hedge fund regulations and compliance. After that, the module 5, in which I will discuss the advanced and hands-on learning, like building a hedge fund strategies, project-based learning, creating a visual hedge fund portfolio, hands-on portfolio simulation, Excel and Python models for hedge fund strategies. So yes, I will continue this module, and that's all. So yes, I have categorized this hedge fund course in 5 modules, and I hope this would be very beneficial and this would add the value in your life in the study when you watch this video. Okay, so let's start without wasting our time. Okay, so yes, सबसे पहले हम हेज फंड को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हेज फंड एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये फंड्स एग्रेसिव स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग हो गया, लेवरेज हो गया, डेरिवेटिव्स और आर्बिट्राज, ताकि मैक्सिमम रिटर्न जनरेट किया जा सके। सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट कि यहाँ से हमारा हेज फंड ये म्यूचुअल फंड से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, शॉर्ट सेलिंग्स नहीं होती है, लेवरेज की बात नहीं होती है, डेरिवेटिव्स यूज़ नहीं होते हैं, आर्बिट्राज नहीं होते। तो येस, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेज फंड। हेज फंड इज़ अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट एम्प्लॉयज वेरियस स्ट्रेटजीज टू जनरेट हाई returns for its investors, right? So, unlike traditional mutual funds, hedge funds use aggressive investment techniques such as leverage, derivatives, short selling, and arbitrage. Now, I will explain the historical evolution. What is the historical evolution of hedge funds? So, yes, uh, the historical evolutions, as you can see here, in 1945, first hedge fund launched by Alfred Winslow Jones, and in which uh, they have used the leverage and short selling. In 1960, right, first is in 1949, in 1960s to 1980, hedge fund grew but remained niche.
like primarily used by wealthy investors. In 1990s, 2000s, rapid growth due to high returns, okay, and major hedge fund failures, LTCM in 1998. In 2008 financial crisis आ गया था. It led to increased regulations and risk management reforms. And now present day, after 2008, what happened? Hedge fund managed over $4 trillion globally, adapting AI and algorithm statistics. So yes, now it is in boom. So if we take the example of hedge fund, so what would the example? Hedge fund like Breezewater Associates, founded by Ray Dalio, uses macroeconomic trends to make investment decisions. Okay. दूसरा एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि लाइक अगर एक हेज फंड को लगता है कि टेस्ला की स्टॉक प्राइस फ्यूचर में गिरने वाली है तो वो शॉर्ट सेल करेगा, यानी पहले स्टॉक बोरो कर लेगा और बाद में सस्ते प्राइस पे बाय करेगा ताकि प्रॉफिट हो सके. तो ये हमारा शॉर्ट सेलिंग हो गया. हेज फंड वही होता है. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस लाइक हाउ हेज फंड इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड प्राइवेट इक्विटी. सो बहुत लोग हेज फंड को म्यूचुअल फंड या प्राइवेट इक्विटी के साथ कंफ्यूज करते होंगे. तो चलिए क्विक कंपैरिजन देखते हैं इसकी. You can see here comparison features is here, like aspects, investment style, liquidity, regulations, investor type, and fee structures. And yes, so what is a hedge fund? Okay, in hedge fund, you can see which type of investment style: aggressive, mutual fund, passive, and private equity, direct investment in private companies. If we take in the expect of liquidity, then in hedge fund there is less liquidity. In mutual fund there is highly liquid, like daily redemptions होते हैं. In private equity there is a less liquid, like 5 to 10 years lock-in period होता है इसमें. If we talk about the regulation, then हेज फंड जो होता है वो लाइटली रेगुलेटेड होता है क्योंकि उसमें प्राइवेट फंड्स होते हैं. म्यूचुअल फंड हैवली रेगुलेटेड होता है क्योंकि इसमें सेबी और सेक की भी इन्वॉल्वमेंट होती है. प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो इट इज रेगुलेटेड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टर टाइप, देन इन हेज फंड high net worth individuals, okay. In mutual fund, retail investors and institutions, and in private equity, there is institutional pension funds, NHWIS, okay. And what about the fee structures? As you can see on a screen, like 2 and 20, 2% management fee and 20% profit share. This is the charge. This is the fee structure that for the institutions that manage the funds. And yes, in hedge fund and in mutual fund there is very low fees, like 0.5% to 1.5%. And in private equity there is a management fees and carried interest that is 20%. Yes, so if we take the example like hedge fund, Reliance Technologies uses complex algorithm to trade the stocks, okay. In mutual fund, Vanguard S&P 500 index fund passively track the market. And in private equity, Blackstone acquires and manages private companies. So अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको म्यूचुअल फंड ईजिली अवेलेबल होंगे, पर हेज फंड सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है. ये काम की बात मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखना आप. तो जैसा कि आपने देखा अभी चीज़ें बहुत ही थी. मैंने यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया हिस्ट्री के बारे में कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है. तो हो गई अभी हिस्ट्री की बात, है ना. और उसके बाद मैंने कंपैरिजन भी बता दिया. यस, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो अभी इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ हेज फंड्स. तो इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ हेज फंड्स अगर हम देखें तो हेज फंड का कॉन्सेप्ट 1949 में अल्फ्रेड विंसलो जोन्स ने स्टार्ट किया था, जो एक जर्नलिस्ट थे. उनके उन्होंने एक हेज पोर्टफोलियो क्रिएट किया जिसमें लोग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशन दोनों इंक्लूडेड थे. ठीक है, उसमें क्या इंक्लूडेड थे, सॉरी, उसमें लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशन दोनों इंक्लूडेड थे ताकि मार्केट रिस्क को बैलेंस किया जा सके. इनके माइलस्टोन्स क्या क्या थे? तो 1980s टू 1990s जॉर्ज सोरोस जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स का राइज, 2000 में हेज फंड का बूम,
ठीक है, ब्रीज वाटर जैसे चीज़ों का बूम हुआ था। उसके बाद 2020 से अगर 2008 में तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। उसके बाद हम देखें अगर तो 2020 एंड बियॉन्ड्स अभी एआई ड्राइवन ट्रेडिंग्स हो रही है, ईएसजी फोकस्ड हेज फंड्स हो रहे हैं एंड क्रिप्टो बेस्ड फंड्स भी इन्वॉल्वमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। 2008 में एक बड़ा हेज फंड लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एलटीसीएम, ठीक है, कोलैप्स हो गया था क्योंकि उसमें एक एक्सेसिव लेवरेज लिया था। उन्होंने एक एक्सेसिव लेवरेज लिया था। ये बताता है कि रिस्क मैनेजमेंट हेज फंड्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हेज फंड के फी स्ट्रक्चर्स और पार्टिसिपेंट्स के बारे में। हेज फंड एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट की पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हेयर इट इज़ गिवन दैट जनरल पार्टनर्स वर्सेस लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर कौन होते हैं? द फंड मैनेजर हु मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और लिमिटेड पार्टनर क्या होते हैं, कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग कैपिटल बट विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, तो यस, जनरल पार्टनर वो होते हैं जो फंड मैनेज करता है, लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टर्स जो पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। प्राइम ब्रोकर्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो प्राइम ब्रोकर्स का मतलब क्या होगा? गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली जो फंड को ट्रेडिंग और लेवरेज देते हैं, ठीक है। अब इसमें कस्टडियन का भी रोल होता है जो कि असेट को होल्ड और सिक्योर रखते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर। एग्जाम्पल अगर देखें कि जीपी कंट्रीब्यूट $100 मिलियन मतलब 10%, तो जो लिमिटेड पार्टनर है, जो लिमिटेड पार्टनर कौन हो गया? जो इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उनका 900 मिलियन ये रहेगा, 90% का कंट्रीब्यूशन रहता है। और जनरल पार्टनर जो कि फंड को इन्वेस्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उनका 10% का कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। एक फंड मैनेजर भी होता है जो जो स्ट्रेटजीज बना के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करता है, उसको फंड मैनेजर बोलते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ब्रिज वाटर एसोसिएट के फंड मैनेजर रे डैलियो को किंग ऑफ हेज फंड्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मैक्रो स्ट्रेटजीज से बिलियंस कमाए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हेज फंड। हेज फंड के लीगल एंटिटीज भी हैं कुछ उसके, लाइक limited partnerships common in US. Investors are LPs and managers are GPS. Hedge funds are structured in different legal formats. First is limited partnership, second is limited liability partnership, and third is offshore funds. So offshore funds क्या होते हैं? Located in, where is it located? Located in tax friendly jurisdictions, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हो गए, इट इज़ यूज्ड फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। एंड लिमिटेड पार्टनरशिप हो गया कॉमन द यूएस। इन्वेस्टर्स आर एलपीज एंड मैनेजर्स आर जीपीज। इट इज़ वेरी simple that I mentioned early. Okay, so yes, it's time to discuss the types of hedge funds and their objectives. So first is long short equity hedge funds. Invest long in undervalued stocks and short overvalued stocks. Short मतलब sell, long मतलब buy. Okay. So what it aims, long short equity hedge funds, it aims to reduce market exposure and generate alpha. Okay. So थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी। स्टॉक्स को बाय और शॉर्ट दोनों करते हैं, बाय और सेल दोनों करते हैं। इवेंट ड्राइवन क्या हो गया? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ट्रेड करते हैं। ग्लोबल मैक्रो क्या हो गया? इकोनॉमिक पॉलिसीज और करेंसीज पे ट्रेड करते हैं। आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज क्या हो गए? मिस प्राइसिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड क्वांटिटेटिव हेज फंड्स क्या हो गए? एआई और अल्गोरिदम यूज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमने जो हमने करा था। मैंने बताया कि लॉन्ग एंड शॉर्ट में क्या करते हैं हमने। तो हम लॉन्ग को करते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को लॉन्ग करते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं। फिर इवेंट ड्राइवन स्ट्रेटजीज में हम क्या करते हैं? हम मर्जर एक्विजिशंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल भी हमने लिया है कि इफ माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर एक्टिविजन and event duration driven funds by Activision stocks expecting a price to rise. उसके बाद ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटजीज, ये क्या है? तो इकोनॉमिक पॉलिसीज और करेंसीज पे ट्रेड करते हैं। उसके बाद आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज क्या होती है?
वही आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज वो हो गई जहाँ पे मिस प्राइसिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं, लाइक एक मार्केट दूसरी मार्केट, ऐसा एम्स टू बी मार्केट रिस्क न्यूट्रल बाय बैलेंसिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। कितने तरह के आर्बिट्राज होते हैं, तो एक कन्वर्टिबल आर्बिट्राज होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज होते हैं। कन्वर्टिबल में होता है कि प्रॉफिटिंग फ्रॉम मिस प्राइसिंग इन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, और स्टैटिस्टिकल्स में होते हैं यूज क्वांटिटेटिव मॉडल्स टू एक्सप्लॉइट प्राइस डिफरेंसेस। यस, आप एग्जांपल ही ले लो कि एक हेज फंड फाइंड्स द रिलायंस स्टॉक इज मिसप्राइस्ड इन ऑन एनएसई एंड बीएसई, सो एन एग्जीक्यूट आर्बिट्राज टू प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि एक मार्केट से बाय करके दूसरे मार्केट में सेल कर देना। एनएसई और बीएसई का अलग हो गया। क्वांटिटेटिव में जैसा कि था, एआई और एल्गोरिथम का यूज करके करते हैं। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं इसका, रिलायंस टेक्नोलॉजी मेडिटोलियन फंड्स हैज रिटर्न ओवर 66% एनुअली यूजिंग क्वांटिटेटिव मॉडल्स। ओके, so this model covered the fundamentals of hedge funds, including their structure, history, and various strategies. Okay, understanding this concept is essential before diving into advanced topics like risk management, performance measurement, and trading strategies. Now I have a question to you. Like, would you like additional real-world case studies or exercises to reinforce these concepts? If yes, then do comment in comment box. तो यस, आज हमने हेज फंड की बेसिक्स को समझा, क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसमें, कौन सी स्ट्रेटजी यूज होती है। आगे की मॉड्यूल्स में हम और डिटेल्स में रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस और हेज फंड स्ट्रेटजीज को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।